क्लासिफिकेशन हो गया था ना हमारा लिख के सारे फाइलम का। यस, कितने फाइलम का लिख के हो गया था? एस्केलिमेंथस, पैलियोलिमेंथस, प्लेटिहेल्मिन्थस तक हो चुका था ना। आप नहीं लिख सकते हो बाकी का? यस, देख के लिए नहीं लिख सकते हो। क्या लिखोगे? ऑर्गन सिस्टम। हाँ, ऑर्गन सिस्टम में सिर्फ ऑर्गन, बायलैटरल, देन सूडोकोलोमेट, एस्केलिमेंथस। अरे लिख लोगे ना? यस, कॉन्फिडेंस ऐसा कोई है जिसको नहीं है कि नहीं लिख सकते? लिख के दो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फाइलम पोरिफेरा। ओके, फाइलम पोरिफेरा। सो देखो, आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए आता है। ओके, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम पोरिफेरा? So these animals are simple body plan and they are called as sponges. The animals which belongs to the porifera are called as sponges. क्या कहते हैं उनको? Sponges. So आपने स्पंज देखा है? कैसे होता है स्पंज? सॉफ्ट होता है और उसको आप प्रेस कर सकते हो। तो their body is like a sponges. मतलब स्पंज जैसा है, that's why they are called as sponges. Okay? They bear numerous pores on their body. This pores is called as ostia या oscula. Please remember, they having क्या है उनकी बॉडी में numerous pores है, open pores है. These pores are called as ostia or oscula. Okay, the pores which present on the sponges are called as ostia या oscula. These are aquatic animal and most of them are marine. Marine मतलब they live in sea water. Please ध्यान देना. Mostly these animals are aquatic. Sorry, these animals are aquatic, mostly marine, and few are fresh water dwellers. मतलब जो fresh water में रहते हैं. River water कैसा है? Fresh water है, not salty. Okay, दोनों का मीनिंग समझ लो. Marine water मतलब sea या ocean में रहेंगे. मरीन मतलब सी और ओशन, दैट इज सॉल्टी वाटर. इसमें रहेंगे सॉल्टी वाटर. और ये जो फ्रेश वाटर कहते हैं, फ्रेश वाटर मतलब नॉन सॉल्टी वाटर. क्या होता है? नॉन सॉल्टी वाटर. और नॉन सॉल्टी वाटर किसके होता है? रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में. ओके, These most of the animals are asymmetrical body. कैसे उनकी बॉडी? asymmetrical. Okay, first characteristic क्या लिखोगे? They are having the simplest body plant and they are mainly called as sponges. Their body bears large number of pores called as ostia या oscula. They are aquatic animal, mostly marine मतलब live in sea or ocean, and few are freshwater dwellers. That is, they are live in non-salty water, that is river, lake या ponds. Their body is not symmetrical. Asymmetrical means कहीं से भी कट करो इक्वल पार्ट नहीं बनेंगे. They are asymmetric body. कैसी बॉडी है उनकी? Asymmetrical body. These animals having special type of cell. क्या इनमें? Special type of cell called as collar cell. क्या कहते हैं उसको? collar cell. Please, important characteristic of the phylum Porifera. It's a important. ये ostia, oscula and the collar cell. ये दो important properties है. The animals belongs to Porifera. कौन से? They having the open pores called as ostia or oscula, and second, they having the special type of cell called as collar cell. Okay, called as collar cell. This animal always attached to the substratum. Substratum मतलब बेस में, ऊपर तैरते नहीं है. They are sessile मतलब they are attached to the water. Hence do not show locomotion. Hence they are referred as sedentary animal. Sedentary मतलब जो fixed to the water. What is the meaning of? They are sedentary. Sedentary मतलब yes. What is the meaning of sedentary? Fixed to the water. Okay, they are present at the bottom of the ocean या
बॉटम ऑफ द सी, ऐसे फिश जैसे तैरेंगे नहीं, समझ में आ रहा है, किसी रॉक में या अटैच होंगे, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द बेस एंड डू नॉट शो. काय सुरू आहे, पुढे लक्ष आहे, खूप वेळची बघून आली की. अरे पण थोड्या वेळ तर वरती बघायला पाहिजे ना, बिलकुल नाही, अशी म्हणजे अशीच आहे. सो दे आर सेडेंटरी एनिमल मीन्स फिक्स एट द बॉटम. ओके, और फिक्स है इसका मतलब लोकोमोशन शो करेगी क्या? यस, दे आर अटैच टू द बॉटम मीन्स डू नॉट शो लोकोमोशन. their spongy body is supported by spicules or spongy fibers. Spicules are made up of calcium carbonate or silica. It is very important. Okay, third important, their body are supported by, yes, देखो सॉफ्ट बॉडी है, समझ में आ रहा है, सॉफ्ट बॉडी है. अगर पानी का मतलब क्या कहते हैं अपन, जैसा एकदम जोर से अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे. ओके, तो इनके लिए उनके बॉडी को हार्ड बनाने के लिए जब बॉडी इज मेड अप ऑफ, यस, स्पिकुल्स, यस, मेरा लाइट बंद करो क्या, और स्पॉन्जीज. ओके, दे हैव स्पिकुल्स और स्पॉन्जीज जो किससे बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका. वेरी हार्ड, समझ में आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका इज वेरी हार्ड. सो अंदर से सॉफ्ट है लेकिन उसकी आउटर बॉडी कैसी है, हार्ड. ओके, व्हाई, टू गिव सपोर्ट. दिस एनिमल्स feed on small organism taken through their along with water. Water is taken into the ostia and given out to oscula. और ठीक है, ऑस्टिया से पानी अंदर जाता है और ऑस्कुला से बाहर निकलता है. तो ऑस्टिया इज बिहेव लाइक अ माउथ. ओके, उनकी माउथ जैसा काम करता है और ऑस्कुला इज लाइक अ एनस. दिस एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय बॉडी and asexual method or by sexual method. Besides they have good ability of regeneration. तो तीनों भी उसमें प्रोसेस हो सकती है. ठीक है फ्रेंड, एक तो यस बड़ी, that is the sexual method, then sexual method से भी होते हैं, and then regeneration. regeneration मतलब कोई उसका एक पार्ट ब्रेक हो गया तो इट कैन डेवलप. समझ में आ रहा है, अगर एक कोई पार्ट गिर के नीचे गिर गया तो वो पार्ट फिर से न्यू एनिमल्स में डेवलप हो सकता है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम Porifera. Now example are very important. Cycon is the best example. Then Euspongia, which is also called as bath sponge. क्या कहा जाता है इसको, bath sponge. Then ये दो एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना, साइक्लॉन एंड बाथ स्पॉन्ज, इसको यूस्पॉन्जिया भी कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हेलोनेमा एंड यूपेक्टिला आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस किंगडम पॉलीफेरा. लेकिन मेन एग्जाम्पल कौन है, साइक्लॉन एंड बाथ स्पॉन्ज. नाउ डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, डायग्राम याद रखना, डायग्राम निकालने के लिए आती है, सिंपल डायग्राम है. यस, सो यहाँ पे क्या निकालोगे, कॉलर सेल, यस, ऑस्कुलम. देन यहाँ पे क्या है, ओके, दिस इज द ओपनिंग. देन यहाँ पे कॉलर सेल है. पीछे जहाँ से इट इज एक्ट एज अ माउथ. दिस वन इज द ऑस्कुलम, जहाँ से जो लिया हुआ है ये क्या करते हैं, इसके ऊपर जो ओपनिंग होती है उससे पूरा पानी ले लेते हैं अंदर. पानी के साथ क्या होंगे, छोटे छोटे कीड़े जो है वो अंदर चले जाते हैं एंड दे फीड ऑन देयर स्मॉल इंसेक्ट व्हिच प्रेजेंट इनसाइड द वाटर.
collar cell. So this is the diagram of the cycon. अच्छा अभी बाथ स्पॉन्ज क्यों कहते हैं? यस, ये स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज क्यों कहते हैं? So this is the black color, somewhat round shape animal. Their body is mainly made up of fibers of protein. Spongin किससे बना हुआ है? स्पॉन्जिन नाम के प्रोटीन से बनी हुई है। तो और इनमें अच्छे से पानी भरने की क्षमता है। अभी आपने देखा है क्या कभी अभी तो क्या नोट गिनने की मशीन आ गई है, लेकिन उनके पास जो होता है, उनके पास ऐसा कुछ तो भी होता है, वो हाथ लगाते हैं फिर गिनते हैं। यस, जिसमें थोड़ा सा मतलब आपका हाथ अगर ड्राई है तो आप वैसे अच्छे से गिन नहीं सकते। इट शुड बी लिटिल बिट वेट, थोड़ा सा गीला होना चाहिए, इसलिए वो वहाँ पे से ग्रीन कलर का होता है, उस पर हाथ लगाते हैं। वो एक्चुअली वो स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज पे थोड़ा सा पानी डालते हैं और गिनते हैं। अकाउंटेंट के पास अगर आप बैंक में गए होंगे तो देखा होगा। तो ये जो बाथ स्पॉन्ज है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन विच हैविंग द वेरी गुड कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर। तो जो पहले वॉर में जो लोग जाते थे, उनके पास इतना टाइम नहीं होता था, ठीक है, पानी अवेलेबल है या नहीं, तो उस टाइम ये क्या करते थे, वो स्पॉन्जिन से अपने आप को क्लीन करते थे। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाथ स्पॉन्ज। ठीक है, तो नहाने का काम मतलब सिर्फ उसमें पानी रहता था, तो ये लोग उससे ही अपने आप को क्लीन करते थे। दैट्स व्हाई इट इज दैट यू स्पॉन्जी इज कॉल्ड एज बाथ स्पॉन्ज। ओके, देन उसको ने क्या वो करेंसी गिनने के लिए भी यूज किया जाता था, वेरी लॉन्ग टाइम आगे भी है। डन, इज ये कैरेक्टरिस्टिक? व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक? They having the very simple body called as sponges. They having the numerous number of opening called as ostia or oscula. Sorry, and चाहिए ना, और का मतलब होता है ट्यूबा, ट्यूबा नहीं, दो नहीं है ना, ostia and oscula. Then they are mainly aquatic animal. Most of them live in a marine water and some are freshwater developed. Then their body is asymmetric. Then they are having special type of cell called as collar cell. Okay, they are generally sedentary, मतलब fixed at the bottom of the sea. Okay, then their body is supported by spicules or spongin, which is made up of calcium carbonate and silica. Okay, they are reproduced by means of fragmentation. Yes, or that is budding. Sorry, budding, or that is asexual reproduction and sexually also. And they besides this they are having the good regeneration power. मतलब उनका कोई बॉडी पार्ट ब्रेक हो गया तो वो क्या होगा, न्यू स्पॉन्जेस में डेवलप होगा। एग्जाम्पल इज साइकॉन, न्यू स्पॉन्जिया which is called as bath sponge. Okay, now next is the Cnidaria. Also Cnidaria is also called as Coleterata. Okay, Cnidaria या Coleterata. डायग्राम बनानी है, leave the space for the diagram. कनाडा दिसत आहे पूर्ण? Okay, phyla Cnidaria. Or what is another name? Coleterata. Okay, so this body of this animal is cylindrical and umbrella like. कैसी है? Body is cylindrical or umbrella like. Body of this animal is cylindrical or umbrella like. If cylindrical, it is called as polyp. अगर symmetrical है तो उसको क्या कहते हैं? Polyp. Okay? And अगर umbrella like है तो caudal. Sorry, medusa. क्या कहते हैं? medusa. जिसका एग्जाम्पल है कोरल. Okay, coral. So they are having either cylindrical body or umbrella like,
अगर सिलेंड्रिकल है दे आर कॉल्ड एज पॉलिप, और अम्ब्रेला लाइक है तो मेडूसा। यस आदित्य, आप कुछ लिखते नहीं हो क्या? कब लिख? आई विल चेक योर कॉपी आफ्टर दिस क्लास। एंड इधर ये ऑल्सो मैं तुझे बाजू। सो अगर सिलेंड्रिकल है, एमसीक्यू के लिए याद रखना, इफ दे हैविंग द सिलेंड्रिकल बॉडी देन दे आर कॉल्ड एज पॉलिप, एंड अम्ब्रेला लाइक मेडूसा. Most of these animals are marine. Only few are freshwater dwellers. मतलब जनरली क्या है? marine ही है, मतलब live in ocean or sea, and only are freshwater. Body of this animal is radially symmetrical. What is the meaning of radial symmetry? कहीं से भी अगर आपने कट किया, they form equal part. So they are having radial symmetry. Body of these animals is radially symmetrical and और किस कैसा है? Diploblastic. What is the meaning of diploblastic? कल हमने पढ़ा था diploblastic means कितने layers होंगे? 2 germ layer. Endoderm, ectoderm, no mesoderm. Cenoblast bearing tentacles are present around the mouth. The tentacles are used for capturing the prey, whereas cenoblast inject the toxin into the body of the prey. Okay, now take an example of hydra. So these are the tentacles. चला आपण काय म्हणू, तुम्ही काय म्हणाले तुमच्या लँग्वेज मध्ये? Yes. अरे याला काय म्हणाल तुम्ही? तुम्हाला म्हटलं की याला नाव ठेवा काही. शेपट्या म्हणा. Okay, so these are the tentacles. क्या ये? क्या काम है इस tentacles का? Tentacles का? they are sessile. मतलब उनको इनके पास से कोई फिश गई छोटी वाली या कोई क्या कीड़े मकोड़े गए तो क्या करेगा वो? उसको पकड़ लेगा. ठीक है, क्या करेगा वो? उसको पकड़ लेगा और कहाँ पे डालेगा? माउथ में. ये उसका माउथ है और माउथ के अंदर है सिनोब्लास्ट. क्या है? सिनोब्लास्ट का काम है जो फूड लिया है, मतलब जो एनिमल्स को उन्होंने कैच किया है उसके अंदर टॉक्सिन डाल के उसको मार देना ताकि वो भागे ना. ठीक है, तो ये टेंटाकल्स के ऊपर ही सिनोब्लास्ट लगा होते हैं छोटे छोटे, जिनमें होता है टॉक्सिन. समझ में आ रहा है? सिनोब्लास्ट इस सेपरेट पार्ट नहीं है, इस टेंटाकल्स के ऊपर ही लगा हुआ है सिनोब्लास्ट. जैसे ही ये क्या करेगा, किसी भी प्रे को कैप्चर करेगा, सिनोब्लास्ट उससे टॉक्सिन रिलीज करके उसको मार देगा. ओके, ताकि वो छूटे ना. Cenoblast bearing tentacles are present around the mouth. Tentacles are used for the capturing the prey, whereas Cenoblast inject the toxin in the body of the prey. These are useful for protection too. मतलब इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता. क्या होगा अगर इसको किस गलती से हमने हाथ लगाया तो क्या करेगा? ये क्या करेगा हमारे बॉडी में? अरे इसके टेंटाकल्स में क्या लगे हुए हैं? टॉक्सिन है ना, और टॉक्सिन रिलीज करेगा. तो इस तरीके से ये खुद को प्रोटेक्ट भी करता है. सो इट इज रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मेशन ऑफ बर्ड. दिया नहीं आई थिंक आपके इसमें. ओके, बर्ड फॉर्मेशन होता है और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. ठीक है, आपके इसमें यहाँ पे दिस इज द ओवरी एंड टेस्टिस. मतलब एक ही प्लांट में दोनों पार्ट अवेलेबल है, प्रेजेंट है. ओके, ओवरी एंड टेस्टिस, मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट ऑन अ सेम एनिमल. सो बर्ड फॉर्मेशन से क्या होगा? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and male and female, that is ovary and testes are there. उससे क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दिख रहा है न्यू बर्ड? यस, दिया है यहाँ पे न्यू बर्ड बन रहा है. So this is the example of hydra. So other example are sea anemone, also called इसको एडमसिया कहा जाता है. एडमसिया मतलब सी एनेमोन. देन कोरल
जेलीफिश, हाँ, फाइसेलिया, पोर्तुगीज ऑफ मैन ऑफ वॉर। अभी आपको समझ में आया ये पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर क्यों कहा गया? तो जब ये लड़ाई हुई थी तो ये फाइसेलिया को यूज किया गया था। तो अभी पता है ना उनके टेंटाकल्स पे क्या होता है? अरे इनके टेंटाकल्स पे क्या होता है? टॉक्सिन। तो इसको ये फेंका था, ठीक है, तो इसको एज अ वेपन यूज किया था, इसको फाइसेलिया को। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। पोर्तुगीज का मैन ऑफ वॉर है ये, मतलब एक वेपन है, अभी नहीं है, ठीक है, अभी मिलेंगे ही नहीं। तो आज इनके ऊपर टॉक्सिन होने के कारण तो इसको वॉर में भी यूज किया था पोर्तुगीज ने, और उनको क्या कहा गया? पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। Aurelia, that is jellyfish and corals. So these are the few examples of the Cnidaria या Coleoterata. So they are under cylindrical. If cylindrical, they are called as polyp, or umbrella-like called as medusa. Okay. Then yes, they are having the tentacles coated with the cenoblast. Okay. Tentacle का काम है prey को capture करना, and cenoblast क्या करेगा? Release the toxin. Okay. This mouth is surrounded by this tentacles bearing the cenoblast. Okay. They are having the radial symmetry. मतलब देखो बेटा कहाँ से भी कट करो equal part बनेंगे ना? Yes. And diploblastic having only two germ layer, endoderm and ectoderm. Okay. They are reproduced by bud formation, that is asexual, or sexual by testes and ovary. Okay. Generally they are marine animal. Only few are freshwater, and they are also present at the bottom, that is sedentary. Is it easy? Can you remember the characteristic? देखो पहले में क्या क्या सबके कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। पहले में कॉलर सेल था, ऑस्टिया था, ऑस्कुलम था, देन क्या था, और एक उनकी बॉडी पे क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज स्पिक्यूल्स थे, यस, जो उनको प्रोटेक्ट करता था। यहाँ पे प्रोटेक्शन किससे होता है? टॉक्सिन, दैट इज टेंटाकल्स। नाउ नेक्स्ट phylum is Platyhelminthes. So body of this animal is slender and flat like a leaf or stick. ठीक है, कैसी होती है उनकी बॉडी? स्लेंडर मतलब लंबी, ओके, जैसा ये है प्लेनेरिया की। मैं तुम्हें बगीचा से वो गलती रहते चिपकुट रहते ऐसा वो जाती है ना, उसके पीछे ऐसे लगता है कि हाँ, घर में कभी कभी आपने देखा होगा इसको, देखा है कि किसी ने प्लेनेरिया को? ज्याला मराठीमध्ये शेंबडी म्हणतात। अरे लिटरली उसका नाम ही शेंबडी अपना मराठी, ठीक है, क्योंकि वो जब भी जाती है ना उसके पीछे ऐसे थोड़ा सा जो नोज से निकलने वाला सिक्रेशन कैसे होता है वैसे निकलता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज शेंबडी। प्लेनेरिया, क्या नाम है उसका? प्लेनेरिया। पहले निकलते थे बहुत, अभी नहीं निकलते। जहाँ पे फार्म्स वगैरह होता है या ज़्यादा पानी होता है, चिकन ज़रा वो कितने निकलते हैं। देन आइदर स्लेंडर और फ्लैट, ओके, लीफ लाइक होती है। दैट इज योर लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक कैसा है? लीफ लाइक है, यस और नो? देयर इज अ सकर, ठीक है, ये दूसरे एनिमल पे फीड करता है, दैट्स व्हाई देयर इज अ सकर। Most of these animals are endoparasite. What is the meaning of endoparasite? Endoparasite मतलब live in body of other organism. Yes, they are endoparasite. Lives in body of other organism. उनके बॉडी के अंदर रहती है, बहुत भयानक है ये। Okay? These animals live in a body of another living organism. Few are free living and aquatic. और कुछ कैसे है? फ्री लिविंग एंड एक्वाटिक। बॉडी इज अकोलमेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकोलमेट? मतलब उनमें कैविटी क्या है? प्रेजेंट है या एब्सेंट है?
They are endoderm, exoderm and mesoderm. That is ectoderm. These animals are hermaphrodite. Hermaphrodite मतलब male and female reproductive system are present in the same animal. Okay? जब male and female part एक ही organism में होता है उसको hermaphrodite कहा जाता है. क्या कहा जाता है? hermaphrodite. ये नया वर्ड इसका मीनिंग लिया हुआ है. hermaphrodite means male and female part present on a same animal. जैसे हाइड्रा में भी ओरी एंड जो टेस्टिस थे एक ही एनिमल में थे. सो दिस सच टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड एज hermaphrodite. एग्जांपल प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टेपवर्म. टेपवर्म मतलब इट लुक लाइक अ टेप, लंबा 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 लंबा. यस and it is present in our body. लहान मुलांना नाही का मतलब ना जर्म्स आले. या सुना होगा ना छोटे बच्चों को जर्म्स होते हैं तो उनके निगाह पेट में ये जो टेपवर्म होते हैं फिर वो बाहर निकलते हैं औषध के लेकर. तो टेपवर्म इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ओके, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं. ओके, होते रहता है टेपवर्म. सो इसकी डायग्राम आती है निकालने के लिए लिवर फ्लूक की. सो इट इज माउथ जहाँ से वो हमारा खून चूस के टिकती है. जैसे मैं जेनाइटल एपेरेटस. दिस इज द वेंट्रल सकर जिससे वो बॉडी को चिपक जाती है बाकी ऑर्गेनिज्म को. एंड दिस इज द एक्सक्रीटरी पोल्स. ये जेनेटल एपरेचर मीन्स वहाँ से उनकी जेनेटिक पार्ट होता है. मतलब मेल फीमेल एक ही यहाँ पे होते हैं. जो जेनेटल एपरेचर लिखा है उसमें उसके जेनेटल पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, अंडरस्टूड. यहाँ मिनट सा मैसेज लगा. नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सकेलिमेंथस. यस, इस डायग्राम को अच्छे से करना. hermaphrodite का मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन अ सेम एनिमल. देन एंडोपैरासाइट्स मींस लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. बॉडी के अंदर रहती है. ओके, ह्यूमन में कौन सा होता है? आउट ऑफ दिस 3 टेपवर्म होता है. ओके, ये जनरली जो काऊ वगैरह नहीं होती क्या उनके बॉडी में होता है. ओके, रब कर दो. डायग्राम बना ली. देन एक्सकेलिमेंथस. So body of these animals are long thread like. कैसे होते हैं? long thread like और cylindrical. Okay, generally they are long thread like. That's why they are called as roundworms. क्या कहते हैं उनको? roundworms. Okay, roundworms means Ascalimenthus is also. ठीक है, Ascalimenthus को और क्या कहा जाता है? roundworms. These animals are either free living or endoparasites. Again, endoparasites मतलब live in a organism, other organism, inside the body of other organism. And some are free living. जो free living है they are either terrestrial or aquatic. जो free living है वो कैसे है? Aquatic or terrestrial. Body of this animal is triploblastic. Yes, कैसी है? Triploblastic. मतलब अभी 3 जम लेयर and pseudo. पर याद है pseudo में हमने एक्सपेरिमेंटस का लिखा था. Yes, pseudomonomet. मतलब जो meso layer है it is not formed from
मेसोडर्म और गट, ओके, इट इज फॉर्म फ्रॉम एक सेपरेट लेयर बनाती है। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज नॉन सेगमेंटेड एंड कवर विथ टफ क्यूटिकल, ठीक है, कैसे होती है, नॉन सेगमेंट, मतलब उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते इनटू पीसेस, नॉन सेगमेंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय थिक क्यूटिकल, मतलब उनके ऊपर एक कोटिंग होती है। जसे ते काय ते पावसाळ्यात ना आणखी छोटे छोटे जेव्हा खूप सारे पाय राहतात, काय म्हणतात त्याला, गोगल काय नाही, गोम नाही, गोमचा पेक्षा ना छोटूशी राहते पण, आणि खूप सारे पाय राहते, ऐसे ग्रुप में रहती है, बहुत सारे रहते हैं। अरे तूने पायलस नहीं करे केड़े मापुड़े, ऐसे ऊपर का ऐसे ब्लैक ब्लैक होता है, गंदे दिखते हैं, यस, बहुत सारे रहते हैं एक साथ, तो वो है ना उसके ऊपर वैसे थिक क्यूटिकल होता है, नाइस टाइप आया तो बहुत सोफिस्टिकेटेड लाइट जगता ना तुम्ही घरामध्ये लायझॉल आजूबाजूला बिगारी है ना, किडे मकोडे आतेच निघाले, okay, anyway, so these animals are unisexual, but they are not hermaphrodites, मतलब male and female sexes are separate, so they are unisexual, means male and female parts are, yes, separate. Example is Ascaris, जरा intestine worm, sorry, ये भी हमारे पेट में होती है, Ascaris, हमारे मतलब छोटे छोटे, that side is also called as intestinal worm, then cranial worm, loa, eye worm, लोलो बोलो या लोआ बोलो, ओके, लोलो या लोआ, ठीक है। आई वर्म, कोणाच्या डोळ्यामध्ये ये होता है, मतलब समझ में नहीं आता, आई इन्फेक्शन जो इनको होता है उनको ही इस वजह से होता है, दैट इज लोआ, दैट इज आई वर्म, ओके, लोलो मत बोलना। लोलो किसका नाम है, बेटा असल नाम लोआ। जनरली ह्यूमन में क्या होता है, लेडी छोटी होती है और मेल बड़ा होता है, लेकिन एस्केलिस में मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। दोनों में एक होल होता है जिससे वो अपने बाहर निकालते हैं एक्सक्रीशन, देन टेल गंजा आपल्याच बॉडीमध्ये टाकतात, है ना, हमारी बॉडी में है, इसका मतलब इनका एक्सक्रीशन भी हमारी बॉडी में आए, ठीक है। सो टेल होल, देन यहाँ पे माउथ, जिससे क्या देखिए हमारा जो हम जो खाते हैं वो न्यूट्रिशन ब्लड को सब करते हैं। देन जेनाइटल अपर्चर, मतलब यहाँ पे जेनाइटल मेल है तो मेल पार्ट, फीमेल है तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है। बाकी का कल देखेंगे, चार फाइलम हो चुके हैं। फर्स्ट फाइलम इज पॉलीफेरा, सेकेंड वन इज निडेरिया, सिनेडेरिया मत बोलना, मैंने किसने पढ़ा है, सिनेडेरिया, निडेरिया या हॉलैंड फेराटा। नेक्स्ट वन इज प्लैटीहेलमिन्थस, नेक्स्ट वन इज एस्केलेमेंथस। सबके कैरेक्टरिस्टिक लेके याद रखोगे, लिख लोगे, ठीक है।
सिलेंड्रिकल, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। कैसा है? लॉन्ग हो गए या सिलेंड्रिकल हो गए एंड सेगमेंटेड बॉडी। कैसे बॉडी है उनकी? सेगमेंटेड बॉडी, लेकिन कैसा? मेटामेरिकली, मतलब इक्वली मेरिकली सेगमेंटेड। नाउ लुक एट दिस एनिमल। और वो देखो उनके बॉडी में बराबर ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस बनी हुई है। That's why it is called as metamerically segmented. Most of these animals are free living, but few are ectoparasite, not ecto. Ecto मतलब जो बाहर रहता है, okay? जैसा डॉग्स में क्या होता है? डॉग्स के बॉडी पे देखो चिपक के रहते हैं। क्या म्हणते त्याला? गेचूड, असंच काहीतरी म्हणतात ना, ठीक है? तो that is the ectoparasite. Free living animal may be marine or freshwater desert or terrestrial. These animals are triploblastic. कैसे है? मतलब कितने हैं उनमें लेयर्स? Then bilateral symmetry. And eucollobin. मतलब उनमें क्या present है? Through cavity. They have सिटी या पैरापोडिया और सकर फॉर लोकोमोशन। ठीक है? सिटी या पैरापोडिया मतलब हेयर लाइन, या सकर मतलब वो सकर ऐसे जमीन पे लगाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। अरे वो सकर मतलब पता है ना, जैसा अपन ऐसा करते हो ना तो वो सब कर लेते हैं, चिपक जाते हैं और अपने बाकी पीछे के पार्ट को लिफ्ट करते हैं, फिर से वो निकालते हैं, फिर से और सबके मतलब जमीन पे चिपक जाते हैं और मूव करते हैं। समझ में आया? जैसे अभी चिपक गए तो ये क्या करेंगे? इस पार्ट को ऐसे रखेंगे, ठीक है? फिर इस सफर को फिर से आगे रखेंगे, फिर इसको उठाएंगे, ठीक है? सब एकदम फिक्स हो गया तो ये आराम से हिलेगा ना। ओके, सो दे हैव ए सिटी मतलब ये छोटे ऐसे हेयर लाइन प्रोजेक्शन होता है। सिटी और पैरापोडिया मतलब हेयर लाइन स्ट्रक्चर। हेयर लाइन ऐसे हेयर आते हैं, सामने जाते हैं, ठीक है? संपली अशी कशी संपली? आता 36 मिनिट्स होत्या। तुमची इच्छा होती ना म्हणून। पैरापोडिया और सकर, चलो कंप्लीट कर लेंगे आप लोग। हाँ देखो, क्या बॉडी इज कवर्ड विद यस स्पेशल क्यूटिकल, ताकि उनकी बॉडी सॉफ्ट होगी इसलिए वो प्रोटेक्टेड विद द थिक क्यूटिकल। दिस एनिमल्स आर आइदर हेर्माफ्रोडाइट मतलब मेल एंड फीमेल एक ही एनिमल में होता है, जैसे अर्थवॉर्म में मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही एनिमल में प्रेजेंट है। और यूनिसेक्सुअल, लाइक आई थिंक लीच है ना,